السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الاطہار۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میری معززات ماں و بہنوں، سلسلہ رحمت للعالمین چل رہا ہے۔ چند باتیں اپنی حاضری کے لیے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے مقام بڑے بلند ہیں اور ان کے تذکرے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ ہم دنیا کے اندر شب و روز گزارے ہیں اور اس دوران اگر کوئی بزنس مین ہے اور وہ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے تو کسی ایسے پارٹنر کا انتخاب کرتا ہے جو قابل اعتماد ہو۔ اگر بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، ایسے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں جو قابل اعتماد ہو، جو برائٹ فیوچر کی ضمانت دے۔ اگر لمبا سفر کرنا ہو تو ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو رستے میں خراب نہ کرے، جس پر اعتماد ہو۔ قدم قدم پر ہمیں اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک 100 روپے کا نوٹ بغیر اعتماد کے ہم نہیں دیتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اگر کوئی سب سے زیادہ قابل اعتماد ذات یا کسی کی بات ہے، وہ محمد ذی شان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کیوں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، کوئی بھی بات جانے نہیں دیتا تھا۔ اور مجھے قریشی سرداروں نے کہا، عبداللہ کیا کرتے ہو؟ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَاءِ۔ محمد ذی شان علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، وہ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ اگر لکھنا ہی ہوتا ہے تو آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کریں کہ اللہ کے حبیب، یہ میں بات لکھوں یا نہ لکھوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت بھی کر دی۔ اللہ کے حبیب، میرے ساتھیوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا ہے۔ تو کائنات کے امام محمد ذی شان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھو، والذی نفسی محمد بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے، چاہے میں غصے کی حالت میں ہوتا ہوں، خوشی کی حالت میں ہوتا ہوں، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہوں، جو بھی اس زبان سے نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر کوئی ذات ہے یا کسی کی بات ہے، وہ کائنات کے امام محمد ذی شان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لوگوں، محمد ذی شان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بات کرتے ہی نہیں ہیں، جو بھی آپ تک پہنچاتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ نے شان بیان کی ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन। लोगों, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद अगर कोई जात है वो कायनात के इमाम मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इन्होंने दीन के अंदर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। सहाबा की मंशा के लिए, इनको खुश करने के लिए दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई चीज नहीं लेके आए। अगर ऐसा करते तो हम इस दीन के ऊपर बाकी ना रखते। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हस्ती है और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा एतमाद होना चाहिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो हस्तियां जिनकी गारंटियां, जिनके ईमान की गारंटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दी है। वलौ तक़व्वला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। लोगों, हिदायत याफ्ता तभी होगे जब उस तरह ईमान लेके आओगे जिस तरह सहाबा लेके आए। सहाबा कराम मर्द तो मर्द, औरतों की मिसालें। अल्लाह की कसम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आपकी बात के ऊपर किस कदर एतमाद करने वाली थे। एक औरत आती है, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी परेशान हूं, तकलीफ में हूं, मुझे दौरा पड़ता है, मैं बेहोश हो जाती हूं। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? माशिती, क्या पसंद करती हो? इन शिती दुऊतुल्लाह, अगर तुम पसंद करती हो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। सिर्फ दुआ ही नहीं, अय्यु आफिया की, मैं दुआ करूंगा अल्लाह आफियत अता कर देगा, अल्लाह शिफा अता कर देगा, परेशानी को खत्म कर देगा। और दूसरी बात क्या है? इन सबरती वलकिल जन्ना, और अगर इस तकलीफ के ऊपर तू सबर करे तो ये गारंटी नबूवत वाली जुबान देती है, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर दाखिला अता करेगा। अल्लाह की कसम, उधार उसके साथ किया जाता है जो काबिल एतमाद हो। पता नहीं कब मौत आए, कब फैसले हो जन्नत और जहन्नम के। जैसे हम कहते हैं ना, ए जहां मिठा अगला क्या डिठा, पता नहीं कब मौत आए, कब फैसले हो। रब्बे काबा की कसम, उसे एतमाद था प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात और आपकी बात के ऊपर। कहने लगे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपनी जन्नत को खतरे में नहीं डालना चाहती, सब्र करूंगी। इसलिए सबसे ज्यादा काबिल एतमाद अगर कोई जात है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो औरत थी। एक बच्ची का मैंने वाकया पढ़ा, वल्लाह हैरान रह गया किस कदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतमाद करने वालियां थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जुलैबीब, वो छोटे से कद वाले हैं, काली रंगत है, गाहे बगाहे मदीना की गलियों में फेरी लगाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या जुलैबीब अला ततज़व्वजू, और जुलैबीब शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, शादी नहीं करना चाहते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ना जमाल है ना माल है, मेरे साथ कौन शादी करेगा? आपने फिर वही सवाल किया, उसका यही जवाब था। तीसरी मर्तबा पूछा, कहने लगे अल्लाह के हबीब, जवान हूं, दिल करता है, लेकिन मेरे साथ शादी कौन करेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ फला अंसारी सरदार के घर पैगाम पहुंचाओ शादी का। कहते मेरे पांव डगमगा गए, सरदार के घर अपनी शादी का मैं पैगाम लेके जाऊं? अल्लाह की कसम, मुस्नद अहमद के अंदर मैंने पढ़ा है, ये वो घर था जिसके अंदर बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आए। किसी को बच्ची रिजेक्ट कर रही है, किसी को वालिदैन रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जुलैबीब ने दस्तक दे दी, सरदार बाहर आए हैं और कहने लगे हुक्म कीजिए। कहने लगे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है। वो कहता है इससे खुश किस्मती और कौन सी हो सकती है कि मेरे घर का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया। कहते नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। अल्लाह की कसम, वो भी सहाबी थे, खामोश हो गए, घर चले गए, बीवी से मशवरा कर रहे हैं कि जुलैबीब के लिए बेटी का रिश्ता मांगा गया है। बेटी बड़ी समझदार थी और नौजवान सीनों में दिल रखते हैं, बड़े जज्बात होते हैं, बड़े अरमान होते हैं, लंबे लंबे ख्वाब होते हैं। अल्लाह की कसम, बेटी बड़ी समझदार थी। उसने देखा वालिदैन परेशान है, वो परख गई, उसने सुन लिया तो कहने लगी आप परेशान किस बात पे हैं? उन्जुरू मन अरसलहू, आप जुलैबीब को देख रहे, आप ये देखें इसको भेजा किसने? अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमराहू, क्या तुम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को रद्द कर दोगे?
अदफाऊनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे काबा की कसम वही जुमले कहे, फ़इन्नहु लन युज़य्यअनी, जो अम्मा हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा था, इब्राहीम किसके हुक्म पर मुझे इस वीराने के अंदर छोड़ के जा रहे हो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अल्लाह के हुक्म पर, यही जुमले अम्मा हाजरा ने कहे थे कि अगर ये बात है अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। अल्लाह की कसम अल्लाह ने जाया नहीं किया। जिसके दिल के अंदर ईमान है, जिसने कलमा पढ़ा है, उसकी दुआ और तमन्ना है, ऐ अल्लाह जिंदगी में एक बार अपने घर के चक्कर लगवा दे, मस्जिद नबवी की नमाजें हमारे नसीब में कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना, उस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपने घर को लोगों के लिए अमन का गहवारा बना दिया। वही जुमले इस बच्ची ने कहे कि ऐ अब्बा जान, आतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमराहु, आप अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को रद्द ना करें, आप मुझे सुपुर्द कर दे। मुझे इस हस्ती के ऊपर एतमाद है, आपकी बात के ऊपर एतमाद है कि अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब कभी मदीना के अंदर ज़कात इकट्ठी की गई ना, सबसे ज्यादा माल जुलैबीब के घर से निकला। ये था सहाबा कराम सहाबियात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एतमाद। और हमें कोई कहते हैं ना, आप इधर जा रहे, रास्ते में डकैती हो रही है, हम जनाब अपना रास्ता छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं। इत्माद है, पता है जनाब मैं जाऊंगा, मेरे माल को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रब्बे काबा की कसम से आबा तड़प उठे, अल्लाह के हबीब कौन बदबख्त होगा जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अतानी दाखिल अल जन्ना व मन असानी फकद अबा, और जिसने पूरी की पूरी जिंदगी अपने शब रोज, अपनी तिजारत, अपनी हट्टी खट्टी, अपनी खुशियां, अपने गम अपनी मर्जी से गुजारे, उसने तो जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। और जिसने तमाम के तमाम मामलात मेरे हुक्म के ताबे कर दिए, वो जन्नत में चला गया। आज हम कहते हैं शादी कड़ी रोज रोज आंदी ने, और मौलवी साहब एक फौदगी वाला घर है, को ढोल ढमक्का होना चाहिए, को तूती बाजे होने चाहिए ने। ठीक है दीन भी है, लेकिन नाल नाल दुनिया भी रखनी चाहिए है। अल्लाह की कसम, जिन्होंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात और आपकी जात के ऊपर एतमाद किया, अल्लाह के हबीब ने कहा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, और रिश्वतखोर बाद आजा जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, और सूदखोर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है, तू कभी जीत नहीं सकता, और नाप तोल में कमी करने वाले बाद आजा, बेटियों के हक गस्ब करने वाले, बहनों के हक गस्ब करने वाले। अल्लाह की कसम हमें एतमाद ही नहीं है। ठीक है मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, आलुल हदीस कहलाते हैं, लेकिन बताओ कोई एक आयत ऐसी हो, एक हदीस ऐसी हो जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट दी हो, जिसने डायरेक्शन तब्दील कर दी हो, जिसने मेरा किबला दुरुस्त कर दिया हो। कोई एक आयत तो ऐसी होनी चाहिए। जिंदगियां बीत गई जलसे सुनते सुनाते, लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसें सुनते हैं, खुतबात जुमा सुनते हैं, नहीं आई तो तब्दीली नहीं आई, नहीं हुआ तो एतमाद नहीं हुआ। अल्लाह की कसम बड़ा एतमाद था। सैयदना अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले सहाबी हैं, और ये खुश नसीब वो कबीला है जिसके बारे में कायनात के इमाम मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ये कबीला गफार सारे का सारा जन्नत में जाएगा। और जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर गुजरा, खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा, फिर मदीना के अंदर फितनों ने दाखिला किया, कोई कूफा से आ रहे हैं, कोई इराक से आ रहे हैं, अपनी बीवी से कहने लगे, मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था कि जिसने फितनों से बचना हो ना, वो अपनी बकरियों को ले और जंगल में चला जाए। तो लिहाजा चलो फितनों से बचने के लिए हम जंगल में निकलते हैं, और जंगल में चले गए, वहां रहने लगे। कुछ अरसे बाद बीमार हो गए, बीमारी इतनी शिद्दत पकड़ गई कि मौत की तहलील पे पहुंच चुके हैं। अब बीवी रो रही है,
बीवी ज़ारों कतार रो रही है। अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते किस बात पे रोती हो? कहने लगी कोई एक बात हो तो बताऊं कि मैं किस बात पे रोती हूं। जब से आए हैं हमें कोई मिलने नहीं आया, हमारा किसी को पता तक नहीं है, और आपको मैं देख रही हूं कि आप मौत की गोद में जा चुके हैं, और फिक्र मुझे ये है कैसे आपको गुस्ल दूंगी, कैसे आपको कफन पहनाऊंगी, कैसे आपके दफन का एहतमाम करूंगी, मुझे तो इस बात की फिक्र है। तो कहने लगे अबशिरी वला तबकी, अगर तू खामोश हो जाए ना मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूं। रब्बे काबा की कसम एतमाद की बात करता हूं, अकल तस्लीम नहीं करती कि मैं मरने लगा हूं, आज तक कोई नहीं आया। मैं भी कहता हूं बात ठीक है, हदीस ठीक है, लेकिन अकल मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा मुआशरा इसे कबूल नहीं करता, मेरी महफिल और मेरा मसलक इसे पसंद नहीं करता। मैं अपने मसलक और मुआशरे के अंदर आपकी ये दी हुई हदीस कैसे लेके जाऊं? ठीक करते हैं लेकिन मेरी अकल इसे तस्लीम नहीं करती। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो दीन को अकल के ऊपर परखते हैं, आओ मैं आपको बताता हूं, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुराबों के ऊपर मसा करने का हुक्म है ना, अगर अकल की बात की जाए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं मेरी अकल ये कहती है कि पांव के नीचे से वसा होना चाहिए, लेकिन हुक्म है ऊपर करने का। अब मैं अकल को छोड़ दूंगा, अमल के ऊपर आऊंगा, और अकल नहीं तस्लीम करती। जब से आए हैं कोई मिलने नहीं आया, अब मरने लगे हैं। लेकिन कहने लगा अबशिरी वला तबकी, अगर खामोश हो जाए ना मैं खुशखबरी सुनाता हूं। कहने लगी सुनाइए। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लिनफ़रिन व अना फ़ीहिम, अहले इल्म बैठे हैं, नफर 7-9 तक का बोला जाता है। कहने लगे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में मैं बैठा हुआ था, हम 7 या 9 लोग थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मेरे साथियों, आप में से मेरा एक साथी है जिसे ऐसी जगह पर मौत आएगी कि अकेला होगा और कोई लोग बंदा नहीं होगा जो इसको कफन पहनाए, इसको दफन करे। फौत होने के बाद एक बहुत बड़ी मुसलमानों की जमात आ जाएगी जो इसके कफन दफन का एहतमाम करेगी। और मैं जानता हूं सब के सब फौत हो चुके, कोई अपने घरों में, शहरों में, देहातों में, कोई कहीं फौत हुआ, कोई कहीं फौत हुआ, लेकिन पहला मैं हूं उनमें से जो जंगल में फौत हो रहा हूं। और मेरा इस बात के ऊपर एतमाद है, ना मैंने कभी झूठ बोला है, ना उस बयान करने वाले ने कभी झूठ बोला है, कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो मैं ही हूं। ये बात कहनी थी, फौत हो गए और ये अपनी बीवी को नसीहत करके गए कि अगर मैं फौत हो जाऊं ना, ये साथ जो ट्रैक गुजरता है ना, इसके पास मुझे खींच के ले जाना और कोई ना कोई जरूर आएगा। अल्लाह की कसम कितना एतमाद था उस माँ को, उसने अपने खामद को वहीं छोड़ा कहीं देर ना हो जाए, वो काफिला गुजर ही ना जाए। दौड़ती हुई उस ट्रैक पर पहुंची है, थोड़ी सी देर गुजरी है, दूर 2 घोड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे। इस मां ने अपना कपड़ा लहरा के उनको मुखातब किया, करीब आए, बहन कौन हो? कहने लगी आप कौन हो? तो कहने लगे हम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले सहाबी अबू ज़र गफारी की तलाश में निकले हैं। कहने लगी वो तो फौत हो चुके हैं। बहुत बड़ा लश्कर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में था, वापस गए, अमीर लश्कर को इतला दी, पूरे का पूरा लश्कर आया, उनको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जब लहद में उतारने लगे ना, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के जस्दे खाकी को अपने सीने से लगा के ज़ारों कतार रो रहे और कह रहे सदका रसूलुल्लाह, सदका रसूलुल्लाह, सदका रसूलुल्लाह। और कब्र बंद कर दी गई। बाद में साथियों ने पूछा ए अमीर लश्कर ये क्या बात थी, आप सदका रसूलुल्लाह की बात कर रहे थे, अल्लाह के हबीब ने सच फरमाया, अल्लाह के हबीब ने सच फरमाया। कहने लगे हम एक जिहादी मार्के के लिए निकले हुए थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सुस्त सवारी थी, ये पीछे रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी नहीं है, कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी नजर नहीं आ रहा, पीछे रह गए, इंतजार करेंगे। थोड़ी देर इंतजार के बाद देखा एक सवार आ रहा है, आपने फरमाया देखो ये मेरा अबू ज़र आ रहा है। हाँ अल्लाह के हबीब ये अबू ज़र ही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था रहिमल्लाहु अबा ज़र्रिन यमशी वहदहु व यमूतु वहदहु व युबअसु वहदा। अल्लाह तबारक व तआला अबू ज़र के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाए कि जब फौत होगा अकेला होगा, कब्र में अकेला जाएगा, जब कब्रें उखाड़ी जाएंगी अबू ज़र अपनी कब्र से अकेला निकलेगा। मैंने सोचा हर बंदा अकेला मरता है, अकेला ही कब्र में जाता है और अकेला ही अपनी कब्र से आएगा। आज मुझे समझ आई अल्लाह के हबीब ने सच फरमाया था कि
दुनिया के अंदर ये वाहिद अबू दर है जो इस जंगल के अंदर अकेला फौत हुआ है। इस अकेली कब्र में, जंगल में एक ही कब्र है, ये इसमें दफन हो रहा है, और जब कब्रें उखाड़ी जाएंगी अकेला ही अबू दर इस जंगल से उठेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और आपकी बात के ऊपर एतमाद करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी आप समाअत फरमा रहे थे जो सहाबा इकराम